Hello dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are doing the nephron, and in the nephron we have now done its types, its number, its position or everything. So nephron, you know, it is the structural and functional unit of the kidney. Now today we will go in detail. Nephron consists of how many parts and what kind of these parts are. So nephron, what is nephron? It is the structural and functional unit of kidney. अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स हैं. मैंने आपको बताया भी था. सो नेफ्रॉन जो है, इट हैज, सबसे पहले देयर इज अ बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल first. Then there is a proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. So it is also known as PCT, abbreviated as. And now the loop of Henle. And fourth is the distal convoluted tubule. This DCT. So these are the four main parts of the nephron. Now we will draw its structure. Start drawing it. So this is the first part, that is the Bowman's capsule. Now its next part, that is the proximal convoluted tubule. So this is the Bowman's capsule, and the next part, this is known as, this whole part, this is known as PCT, or the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. So here, what is the meaning of proximal convoluted tubule? Proximal means nearer to this Bowman's capsule. Convoluted means folded. As you can see, it is a folded structure. काफी ज्यादा coiled structure ये होता है. Convoluted tubule. Tubule is a term for the tube. Tube-like structure है ये. फिर next जो हमारे पास इसका जो part यहाँ पर है, that is the now the loop of Henle. और loop of Henle में भी जो हमारे पास इस तरह से ये tubule है, तो यहाँ पर इस तरह से we will label it. So this is the like this. So now this is the Bowman's capsule, and I will label this here. This is the PCT, that is the proximal convoluted tubule. Now this structure, this is the loop of Henle. This loop-like structure, this is the loop of Henle, and this limb of loop of Henle is known as descending limb. Descending limb of loop of Henle.
सो डिसेंडिंग क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट होता है, जो फ्लूइड होता है, वो इस तरह से नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो लूप ऑफ हेनले है, इसके जो लिम्ब्स हैं उनकी थिकनेस में फर्क है। यहाँ पर ये थिक है तो इसे हम कहेंगे थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके नीचे जो लिम्ब है वो थोड़ा सा नैरो है तो इसको हम कहेंगे थिन लिम्ब ऑफ थिन लिम्ब। कौन सा थिन लिम्ब? डिसेंडिंग लिम्ब, थिन लिम्ब डिसेंडिंग। और ये ऊपर वाला आ गया आपके पास थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहां से फ्लूइड जो है वो डायरेक्शन इसकी ये रहती है, तो इस तरफ जब ऊपर की तरफ टर्न करेगा तो दिस इज द नाउ दिस लिम्ब इज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब है लेकिन ये थिन वाला है तो दिस इज थिन असेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब है ये। नाउ दिस पार्ट इट इज द थिक ascending limb. So this whole structure is loop of Henle, and this is the descending limb, this is the ascending limb. This is the thicker part of descending limb and this is the thinner part of the descending limb. Now a transverse connection in between and then a thin ascending limb and then a thick ascending limb. अब यहाँ से ऊपर जब हम चल रहे हैं यहाँ पे फिर से हमें एक उसी तरह का जैसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला था वैसा ही कॉइल्ड ट्यूब्यूल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज DCT. व्हाट इज दिस? दिस इज द DCT. तो DCT मीन्स डिस्टल convoluted tubule. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो जो बोमेंस कैप्सूल है यहाँ से दूर जो हमारे पास ट्यूब्यूल का जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, अगेन फॉर कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड ट्यूब्यूल फॉर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। So this is this whole structure, this is the distal convoluted tubule। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा डक्ट आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है इट रिसीव्स मैनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स। जैसे मैंने आपको ब्रांचिंग दिखाई है, इसका मतलब यह है कि काफी सारे नेफ्रॉन जो है वो इस एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दिस स्ट्रेट पोर्शन ऑफ दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज नोन एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। So this is the distal convoluted tubule। अब हम बात करते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल में एक हमारे पास एक बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। सो हेयर विल ड्रॉ इस तरह से एक ब्लड आर्टीरियोल होता है like this। So here is the place where the actual filtration of blood takes place and waste is filtered out। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ पर होती हैं like this। So this structure is known as glomerulus। Glomerulus means bunch of capillaries, गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा। तो कितनी कैपिलरीज होती हैं? लगभग 50 कैपिलरीज यहाँ पर होती हैं। So this is the Bowman's capsule। बाहर का जो कैप्सूल है that is Bowman's capsule। अंदर का ये जो गुच्छा है इसे हम कहते हैं glomerulus। Glomerulus। Now collectively this Bowman's capsule and glomerulus। अब glomerulus में यहाँ पर क्या है? यहाँ ब्लड आ रहा है। तो ये हमारे पास ब्लड आ किस तरह किसके थ्रू रहा है?
this is the afferent arteriole. Afferent arteriole. Afferent arteriole के थ्रू ब्लड इज कमिंग डाउन हियर. यहाँ पे ब्लड आया और इस ग्लोमेरुलस के थ्रू हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म रहता है. यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और जो फिल्ट्रेट हमारा होता है वो यहाँ पे इस ल्यूमेन में आ जाता है. और यहाँ पर जो हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, it breaks down into bunch of capillaries. Again it rejoin to form efferent arteriole. This is efferent arteriole. Efferent arteriole. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास डायमीटर है उसमें फर्क है. यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल इट इज ब्रॉडर एंड इफरेंट आर्टेरियोल इट इज नैरोअर. ये क्यों ऐसा है? इसका जो लुमेन है वो चौड़ा इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड की फिल्ट्रेशन यहाँ हो सके, ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पहुंच सके. और ये नैरो क्यों है? ऐसा करने से, ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पर एक हाई प्रेशर का रीजन जो है वो जनरेट होता है. उस हाई प्रेशर के कारण जो हमारे पास, क्योंकि ब्लड ज्यादा आ रहा है वापस कम जा पा रहा है, उस वजह से यहाँ पर ब्लड जो है वो प्रेशर के थ्रू यहाँ पर फिल्टर होता है. ज्यादा डिटेल में इस प्रोसेस को हम आगे यूरिन फॉर्मेशन में करेंगे, लेकिन जस्ट एन आइडिया. और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो नीट में भी आता है कि कौन सा आर्टीरियोल है जो ब्रॉडर होता है और कौन सा आर्टीरियोल है जो नैरो होता है. तो ब्रॉडर इज एफरेंट एंड इफरेंट इज नैरोअर. अब यहां से ब्लड आ रहा है और इफरेंट आर्टीरियोल से ये यहां पर फिल्टर होकर के वापस जा रहा है. सो दिस इज अ बोमेन्स कैप्सूल और अंदर जो कैपिलरीज का जो बंच है दैट इज ग्लोमेरुलस. अब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, दीज टुगेदर आर नोन एज रीनल कॉर्पसल और मालपीजियन बॉडी. These two together are known as renal corpuscle और Malpighian body. Malpighian. Malpighian body. So this is also an important question from the NEET point of view. कि पूछ लेते हैं कि रीनल कॉर्पसल में क्या क्या होता है. तो रीनल कॉर्पसल में होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस और दैट इज द बंच ऑफ कैपिलरीज और बोमेन्स कैप्सूल. तो उसके बाद अगला जो पार्ट आता है दैट इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बाद आएगा हमारे पास लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब में भी एक थिक पार्ट है, एक थिन पार्ट है. उसी तरह से असेंडिंग लिम्ब में भी एक थिन पार्ट है और एक थिक पार्ट है. उसके बाद जो है हमारे पास अगेन ये ट्यूब्यूल जो है वो कॉइल्ड हो जाता है, दैट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इट रन्स स्ट्रेट फॉर सम टाइम, दैट इज नोन एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. और बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दे ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट, स्टिल लार्जर कलेक्टिंग डक्ट. और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है आगे जो है ओपन होते हैं बड़े डक्ट्स में और धीरे धीरे ये ज्वाइन करके बनाते हैं रीनल पेल्विस जो हमने पहले देखा था. सो यहाँ पर ये तो थे हमारे पास नेफ्रॉन के पार्ट्स. इसमें हर एक पार्ट में किस तरह के सेल्स होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये यहाँ पर क्या करता है, एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करता है. नेफ्रॉन के चारों तरफ जो है इफरेंट आर्टेरियोल इसकी ब्रांचिंग होती है और ये क्या करता है, एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करता है. उसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. तो यहाँ पर हम अब उसको शो कर देते हैं. सो हियर दिस एफरेंट आर्टेरियोल तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इट कोइल्स अराउंड
the proximal convoluted tubule like this. I will rub those. Now from here it runs straight like this, parallel to the thick and thin ascending limbs. Here also it surrounds the distal convoluted tubule like this. Like this. And this. So here in this way a capillary network is formed around these tubules. So here we can shade this, show it like this. There is blood flowing in it. So it is the filtered blood here. Like this. So this efferent arteriole, it forms a capillary network around PCT, DCT, and it runs almost parallel to the loop of Henle. So this all network is known as peritubular capillary network. This is peritubular capillary network. पेरीट्यूबुलर मतलब पेरी ट्यूबुलर, ट्यूब्यूल के चारों तरफ, पेरी का मतलब क्या होता है चारों तरफ, तो ट्यूब्यूल को इसने सराउंड किया हुआ है, तो दैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और ये जो यहाँ पर वेर इट रन स्ट्रेट, यहाँ पर आप देख रहे हो लूप ऑफ हेनले के साथ ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो यहाँ पर इसे हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। जो हमने जब हम टाइप्स कर रहे थे तब भी हमने बात की थी, तो दिस नेटवर्क, दिस इज वासा रेक्टा। इन वासा रेक्टा ब्लड फ्लोज, तो ब्लड यहाँ पर भी ये इस तरफ जा रहा है और इस लिम्ब में इसके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास यहाँ ब्लड फिल्टर हुआ है, फिल्टर होने के बाद ये इस तरह से जो है हमारे पास कुछ और जो है सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस यहाँ पर होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये ब्लड जो है वो वीना कावा के थ्रू वापस चला जाता है बाय फिल्टरिंग आउट द वेस्ट। सो ये था हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और इसकी जो ब्लड सप्लाई का जो प्रोसेस है वो हमने देख लिया है। अब हम डिटेल में इन पार्ट्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल डू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मालपीजियन कॉर्पसल और रीनल बॉडी जो हमारे पास है, मालपीजियन बॉडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। Like this. तो सबसे पहले this is our Bowman's capsule. So Bowman's capsule में आप देख रहे हो there are two walls. Inner wall is known as visceral wall, and outer wall is known as parietal wall. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया अभी नेफ्रॉन का किया कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। अब हम देखेंगे एक्चुअल में यहाँ स्ट्रक्चर है कैसा जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है।
तो यहाँ पर जो विसरल वॉल होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स. विसरल वॉल जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स. और ये जो पोडोसाइट जो सेल होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, देयर आर पोर्स. तो पोडोसाइट्स किस तरह के होते हैं, लेट अस सी. सो पोडोसाइट्स जो सेल हैं, दे हैव फुट लाइक प्रोसेसेस. जैसे पांव होते हैं उसकी तरह प्रोसेसेस इनमें होती हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोडोसाइट. पोडो मीन्स फुट और साइट्स मीन्स सेल. तो यहां पे इस तरह से आप देख सकते हो, ये है इनर वॉल हमारी बोमेंस कैप्सूल की. सेल्स इस तरह के हैं यहां पर. Like this. So these are the podocytes here. Podocytes. और इन पोडोसाइट्स के बीच में आप देख सकते हो ये जो गैप्स हैं, दिस गैप्स, दीज आर पोर्स. दीज आर नोन एज पोर्स. सो ये हमारे पास विसरल वॉल है. अब जो अगर आउटर वॉल की हम बात करें इसकी, तो ये जो है हमारे पास, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमस सेल्स. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. So this is now the visceral wall, which is composed of podocytes, and these these are also known as slit pores. Slit pores. और यहाँ पर जो outer wall है, that is parietal wall, it is composed of simple squamous epithelium. So अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्लोमेरुलस है वो किस तरह का होता है. So this is afferent arteriole. We will draw it in dotted form, and this narrower one, this is the efferent arteriole. अब यहाँ पर जो हमारे पास पोडोसाइट है और ये हमारे पास यहाँ पर कैपिलरी बेड है ग्लोमेरुलस में, जैसे हमने बात की थी. और ये जो ग्लोमेरुलस है, इट इज अ बंच ऑफ अबाउट 50 कैपिलरीज. सो दिस इज द ग्लोमेरुलस, दैट इज बंच ऑफ 50 कैपिलरीज. तो ये एफरेंट आर्टीरियोल है हमारा, और दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल. ब्लड इज कमिंग हियर एंड गोइंग फ्रॉम हियर. तो यहाँ पर अब यहाँ पे हो रही है फिल्ट्रेशन. और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, दिस इज एक्चुअली द कैपिलरी एंडोथीलियम. क्या है ये? कैपिलरी एंडोथीलियम. अब ये जो कैपिलरी एंडोथीलियम है, इसमें भी हम देख रहे हैं इसके सेल्स के बीच में क्या है, गैप्स हैं. तो इन गैप्स को हम कहते हैं फेनिस्ट्री. दीज आर नोन एज फेनिस्ट्री. सो यहां पर हम देख रहे हैं पोर्स हैं, फेनिस्ट्री हैं. तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर एक छल्ली के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है. जैसे चाय छानते हैं हम, उसी तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है. इनके बीच में सिर्फ एक ही कंप्लीट मेम्ब्रेन होती है, और वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो दिस इज द basement membrane. This is basement membrane. So यहाँ पर जो हमारा कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस है, इसमें जो ब्लड है, और यहाँ पे जो लुमेन है, दिस point, this is known as lumen of the Bowman's capsule. Lumen of Bowman's capsule. तो ये जो लुमेन है,
इनके बीच में जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन बन जाती है, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस. और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि इट टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर ऑफ ब्लड. तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लड ज्यादा आता है और वहां पर वापस जाने का जो रास्ता है वो नैरो है, उस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है और ब्लड जो है यहाँ पर फिल्टर होता है और फिल्टर होकर के सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर लुमेन में आ जाते हैं. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी एंडोथेलियम और विसरल वॉल जो बनी है पोडोसाइट से. So filtration membrane हमारे पास सबसे पहले तो है इसमें कैपिलरी एंडोथेलियम. दूसरी जो चीज है इसमें दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज द visceral wall of Bowman's capsule. Bowman's capsule. So these 3 things this form the filtration membrane. तो ये क्वेश्चन जो है नीट में आ जाता है. तो this is the internal structure of this Malpighian corpuscle या renal body. जो renal corpuscle है हमारे पास, उसका ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है. फिर हम बात करते हैं पीसीटी की. नाउ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दीज आर ब्रश बॉर्डर्ड सेल हैं. दिस इज द न्यूक्लियस. और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड मीन्स दे हैव माइक्रोविलाई ऑन देयर सरफेस. माइक्रोविलाई जो होते हैं दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होनी है सब्सटेंसेस की. कुछ सब्सटेंसेस जो है फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्ब होने हैं, रीएब्जॉर्ब होने हैं. तो उसके लिए जो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए पीसीटी के सेल्स में होती है माइक्रोविलाई. दैट्स व्हाई दे अपीयर ब्रश बॉर्डर्ड. और यहाँ के जो सेल्स होते हैं दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उनमें होते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए एटीपी, और एटीपी कहाँ बनता है, इट फॉर्म्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये पीसीटी के सेल्स हैं हमारे पास. फिर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट्स है, थिक पार्ट एंड थिन पार्ट. तो थिक पार्ट में जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर cells and thin part it is composed of flat cells. फिर है DCT या distal convoluted tubule. अगेन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स भी जो है वो लगभग पीसीटी जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द पीसीटी. ब्रश बॉर्डर्ड ही होंगे ये भी, क्योंकि यहाँ पर भी रीअब्सॉर्प्शन होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू एज कंपेयर टू द पीसीटी सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू एज कंपेयर टू पीसीटी. सो ये था हमारे पास इनका जो है सेल टाइप हर एक पार्ट का, कि कौन कौन से सेल जो है कंपोज्ड है. तो बाकी मैंने आपको इसमें ये बता दिया है कि नेफ्रॉन जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में. अब हम देखेंगे कलेक्टिंग जो डक्ट्स है वो कहाँ ओपन होती है. कलेक्टिंग डक्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल्स. थोड़ा सा देख लेते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बनते हैं. तो कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जो है एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं एंड दे ओपन इनटू स्टिल लार्जर डक्ट नोन एज डक्ट ऑफ बेलिनाई. So this is important point. Collecting ducts open into larger ducts known as larger duct of Bellini. फिर ये बेलिनाई के डक्ट जो है दे ओपन इनटू कैलिसिस, जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ती बार किया था. माइनर कैलिसिस, फिर मेजर कैलिसिस, और मेजर कैलिसिस फिर फ्यूज करके
open होते हैं into renal pelvis which leads into the ureter. So this was all about the structure of nephron.